गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड Good इवनिंग सर। evening. तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या गुड इवनिंग डिस्कस सर। ओके लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ याद है? भूल गए? देखो इनको। हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या देखा था? यूनिट 2 चल रहा था ना हमारा, नहीं? Sir. तो यहाँ पे यूनिट 2 का हम लोगों ने सेशन 1 देखा था। अब सेशन 2 होगा। सेशन 2 में हमारा सेशन लिंकिंग सेल्स, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तभी स्क्रीन आएगी। स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी, ठीक है? अब स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने जो देखा था, हमारा सेशन है अभी लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स. So what is this? This is spreadsheet also allow you to link the cells from various worksheet and from various spreadsheet to summarize data from several sources. In this manner, you can create formula that span different sources and make calculation using a combination of local and linked information. Multiple sheets help keep information organized. So now, how can we use that? That is setting up multiple sheets. Identify sheets. When you open a new spreadsheet, it has by default it has a sheet named sheet 1, which is managed using tabs at the bottom of a spreadsheet as shown below. तो यहाँ से क्या करते हैं, आपका sheet 1 ये यहाँ लिखा हुआ है. इंसर्टिंग न्यू सीट्स. इंसर्टिंग न्यू सीट्स के लिए क्या करते हैं, ये आपका प्लस वाला आइकन है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने नए सीट को ऐड करते हैं. ओके. There are several ways to insert new sheet. The first step in all cases is to select the sheet that will be next to the new sheet. That will be the next to the new sheet. Then to any of the following. क्या क्या कर सकते हैं? Select the plus icon at the bottom of the screen. ये वाला कर सकते हैं. और select home, insert sheet. Okay, clear? ठीक है. Yes, sir. अब यहाँ पे इंसर्ट सीट क्या करने के बाद क्या करते हैं, रीनेमिंग वर्कशीट. वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं? एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट in the workbook. These names sheet 1, sheet 2, sheet 3, whatever is there and so on are not uh, are not very descriptive. You might want to rename your worksheet to reflect when they contain. For instances, if your workbook contains student marks in individual subject, then you may want to rename the worksheet as subject names such as English, Mathematics and Social Science etc. तो इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे सीट 1 लिखा है तो उसको आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक ऑन one of the existing worksheet names, right click on existing worksheet name, then choose rename from the resulting context menu. Select the worksheet you want to rename, click on the worksheet tab and then select the sheet option from the format window. This displays a sub menu from which you should select the rename option. Okay, तो आप यहाँ से रिनेम कर सकते हैं कि क्या क्या, उसको राइट क्लिक किया एंड लेफ्ट क्लिक किया और वहाँ पे रिनेम कर दिया. Create or change a cell reference. A cell reference refers to a cell or a range, ठीक है, of cells on a worksheet and can be used to find out the values or data that you want to formula or calculate. In one or several formula, you can use a cell reference to refer to data from one or more continuous cells on the worksheet. ठीक है. Data contained in different areas of a worksheet. Data on other worksheet in the same workbook. तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हम लोगों ने वर्क भी किया है इस पे. जैसे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो क्या करते थे, किसी सेल पे वर्क कर रहे हो, वर्क किसी और सेल पे कर रहे हो. जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क कर रहे थे, जैसे सम करना है तो सम किसी और सेल का करना है, रेंज फिक्स कर रहे हैं किसी और सेल का और एग्जिस्टिंग किसी और सेल में, है ना. जैसे देखो एवरेज यहाँ पे लिया गया, एवरेज मार्केटिंग B1 टू B10, ये रेंज फिक्स किया गया. रेफर्स टू द वर्कशीट नेम मार्केटिंग. यहाँ पे मार्कशीट का यहाँ क्या है, यहाँ पे रेफर कर रहा है. रेफर कैसे कर रहे हैं,
तो रेफर करने के साथ सीट का नेम और सीट के नाम के साथ एक ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अदर सीट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे जैसे रेंज फिक्स करना होता है, तो रेंज फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, दो कॉलम, दो सेल का एड्रेस डालते हैं और दोनों के बीच में क्या करते हैं, कॉलम डालते हैं। इससे क्या होता है, रेंज फिक्स हो जाता है हमारा। refers to the range of cells between P1 and P10 inclusively, that is, so separate the worksheet reference from the cell range reference. Click the cell in which you want to enter the formula. In the formula bar, this fx, type equal to sign and the formula you want to use. Click the tab for the worksheet to be referred. सेलेक्ट द सेल रेंज और सेल रेफरेंस। इस तरह से क्या करते हैं, हम सेल के रेफरेंस को लेते हैं। वो अगर हमारी सीट पे है तो डायरेक्ट सेल रेफरेंस ले लेते हैं, अदरवाइज अगर सीट पे नहीं है तो क्या करते हैं, सीट के नेम के साथ उसको ऐड करते हैं। क्लियर है, समझ में आया Yes, कि नहीं sir. आया? समझ में आ गया ना? Yes, sir. Now the next thing is that referencing other sheets. Reference कैसे देते हैं? There are two ways to reference cell in other sheets: by entering the formula directly using the keyboard or by using the mouse. We will look at the mouse method first. Consider the example on the total cell. जो आपका यहाँ पर total cell है, ठीक है? On the total cell sheet, set up a place for all four cells में total cells, so we know where to put the cell reference. The figure below show a total cell sheet with a cell column. ये जो आपका है टोटल सेल का है, ये यहाँ पर 4 सेल्समैन है। वी वांट टू प्लेस द रेफरेंस फॉर द चेकिंग टोटल सेल मंथ इन सेल B3, okay. To make the cell reference in cell B3, select the cell and follow these steps. सेलेक्ट B3 आपने सेलेक्ट कर लिया, B3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, टाइप इज इक्वल टू इन द फॉर्मूला बार, टाइप सम एंड क्लिक ऑन द सीट टैब फॉर द सीट कंटेनिंग ऑन द सेल रेफरेंस। इन दिस केस यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च जो भी है आपका, इन दिस केस इट इज जनवरी सीट एज शोन बिलो। टोटल सेल आपको क्या करना है, टोटल सेल कर देना है और फिर यहाँ पे सेल का रेफरेंस देना है। जैसे click on cell B2 where January sale for Ajay is the January sale, then phrase is equal to sum। हम लोग पहले क्या करते थे, सम करते थे और रेंज वहाँ पे डाल देते थे, जैसे B2 to B5, C2 to C9 ऐसे करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर पेज को रेफर मतलब सीट को रेफर करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सीट का नेम लिखेंगे और साथ में ही हम क्या करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया कुछ? और कोई है यहाँ पे? रिप्लाई करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं समझ में आया कुछ? नहीं सर। लेट से ज्वाइन करोगे तो यही होगा, इतना लेट से ज्वाइन क्यों किया? अब रिकॉर्डेड वीडियो देखना बैठ के, ठीक? क्या सर? अब रिकॉर्डेड वीडियो देखना बैठ के फिर। हाँ सर, हम तो देख लेंगे। हाँ, फिर अब जितना है आगे वो समझो। 7 बजे की क्लास में 7:35 को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे पहले क्या करते थे हम लोग, रेंज फिक्स करते थे, जैसे B2 to B7 जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें ना सीट भी रेफर करना है। तो सीट रेफर करने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम एंड यहाँ पे सीट का नेम है, जैसे यहाँ पे सीट का नेम जनवरी है ना, तो जनवरी में सीट का नेम डालते हैं जनवरी एंड इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं एंड यहाँ पे B2। ठीक है, तो हमने क्या किया, B2 को रेफर कर दिया। सीट नंबर, सीट जो आपका जनवरी था यहाँ पे सम करेंगे B2 का। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Okay. Repeat the step for February and March. Click the green check mark in the input line to finish. The total cell should now look like the figure below. तो ये आपका हो जाएगा। Creating the reference with the keyboard from the figure above, you can deduce how to cell reference is constructed. The reference has two parts: the sheet name January and the cell reference B2. Notice that they are separated by a period.
The sheet will be single quotes because it contains a space and the mandatory field period, that is, this always falls outside any quotes. Now working with hyperlink. On a worksheet, click the cell where you want to create a hyperlink. You can also select an object such as a picture or an element in a chart that you want to use to present the hyperlink. On the Insert tab in this link group, click hyperlink. अब ये बच्चा भी आएगा, मुझे भी समझ नहीं आया. अच्छा, ओके. तो यहाँ क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका या कोई वर्ड है, कोई भी यहाँ पे कंटेंट जो भी आपका सेल पे, उस पर क्या करते हैं, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाना है, लिंक ग्रुप करना है और क्लिक हाइपर लिंक पे करना है, आपका हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, जैसा हम लोग पहले करते थे अपने राइटर के फाइल में या वर्ड के फाइल में, ऐसा करते थे ना. तो प्रोसीजर Yes, इज sir. सेम. You can also right click the cell or graphic on the click and then click hyperlink on the shortcut menu, or you can press Ctrl plus K. Ctrl plus K प्रेस कीजिए, फिर आपका hyperlink आ जाएगा. Under link to click create new document in the name of new document box, type a name for the new file. यहाँ पे क्या करते हैं, existing file, web page, place in the document, create new document, email address. ठीक है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले क्या होना चाहिए ये आप लिख सकते हैं, और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पास देना पड़ेगा. ठीक है, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद ओके कर देंगे, देन आपका क्या हो, हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा. ओके, हो जाएगा ना. Yes, sir. Now, under when to edit, click edit the new document later or edit the new document not to specify when you want to open the new file for editing. In the text to display box, type the text that you want to use to represent the hyperlink. To display helpful information, when you raise the pointer on the hyperlink, click screen tip, type the text that you want in the screen tip or text box and then click OK. ठीक है, अब यहाँ पे आपका है शेयरिंग वर्कशीट. भी जैसे मैंने आपको बताया ना, तो ये करने के बाद मैं एक बार आप लोगों को हैंड्स ऑन यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग सेल को रेफरेंस करते हैं, रीनेम करते हैं, ये सभी चीज़ों को वन बाय वन देख लेंगे. ठीक है, as this is the last session for this unit, that's why I'm doing like that. Now this is session 3. In most यहाँ पे क्या करते हैं, शेयरिंग वर्कशीट को शेयर कैसे करते हैं. In most office setting, there is a shared drive where team can store common files for everyone to use. This usually leads to citing of the message the document file name is locked for editing by another user. So to open a read-only copy of this document, click this one. This message appears because someone else already has the open file. Sometimes, however, it is necessary to have multiple people working on a file at the same time. This can be to either speed up data entry or simply make things easier for collaboration purpose. ठीक है, Spreadsheet software allow the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. In this exercise, you will learn how to share a worksheet. ठीक है, अब यहाँ पे शेयर कैसे करते हैं वर्कशीट को. क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक ऑप्शन अंडर चेंजेस ग्रुप इन द रिव्यू टैब. A dialog box appear as shown below, and now check the option allow changes by more than one user at the same time. This also allow workbook merging. Click OK, and now more. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, आ रही है. Okay. Now this is Sir, आ रही है. ठीक है. Most spreadsheet software automatically turns off some features in shared workbook. This is to simplify the workbook since multiple people can working on the file at the same time. For example, shared workbook don't allow merging cells, condition formatting or inserting picture or graphs. अब यहाँ पे क्या करता है, जब आप किसी फाइल को शेयर करते हैं तो हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने आप सभी को दे दिया कि क्या कर लो, एक फाइल शेयर कर दी कि आप सभी बच्चे अपना नाम और रोल नंबर लिख के मुझे सेंड कर देंगे. ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ कि उसमें से कुछ लिमिटेशन हो जाती है कि आप लोगों को परमिशन तो होगी कि आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज नहीं कर पाओगे, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाओगे.
क्योंकि उसके साथ क्या है कि वो आपके शीट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, इसलिए आप ये सारी लिमिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। Okay, sir. शेयर वर्कशीट डेटा विद अदर यूजर्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर डेटा वर्कबुक को शेयर करते हैं। ओके, नाउ क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। तो कैसे मैक्रोज को स्प्रेडशीट में यूज करते हैं ये देख लेंगे। मैक्रोज आर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल। जैसे कि हम लोग करते थे पहले ना, वर्ड में करते थे या एक्सेल में करते थे, उस तरह यहाँ भी करते हैं। ठीक है। Macros are very useful feature of Excel. It helps in saving time to case when same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying similar formula in similar range of data. In Excel, macros can be used to name and record a set of actions or set of actions. These name set of recorded can be used again and again. The macros recorded set of actions are stored in the same workbook in which you created. In order to use a macro, we need to create a macro first. ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैक्रो को कैसे क्रिएट करते हैं, मैक्रो को कैसे सेव करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा। चलिए इसको आप वन बाय वन प्रोसेस करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो Okay, sir. टू क्रिएट ए मैक्रो फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज मिनिमम मैक्सिमम इन इस सब्जेक्ट, क्लिक ऑन द to create a macro for calculating the average minimum and maximum in each subject. Click on the developer tab, select the first value in the list of mark. Now select the option use relative reference to give the respective location from where the step would be followed. Now click on the record macro option just above. Use relative reference following record macro dialog when window appears on the screen. Give a name to your macro in the name area and press OK. Keyboard shortcut may also be defined. For example, the shortcut key defined Ctrl plus T. Okay. Select the workbook in the store macro in option. Now click on the cell for calculating average of English and write the formula adding value. Similarly, write the formula for minimum and maximum as shown in the figure. So do some formatting in the appearance of the cells as shown in the example. Give some background color of the cell to highlight the cell as shown. And now this will be reflect like that. Click on the button stop recording in developer tab to complete the macro recording. The macro name macro 8 in the example have been saved. To apply the same formatting and have similar calculation for the other subject, click on the first value of the other subject as shown below. ठीक है। तो यहाँ पे click on use relative reference icon to set the relative position of cells where formula is to be applied. Click on the macro button, macro, and a dialog window showing the existing macro will appear. Select the option macro 8 from the list and press run button. On clicking the button, the average minimum and maximum of marks in Hindi will be calculated and formatted according to the recording done in macro. Similarly, run the macro using shortcut key Ctrl plus T by placing the cursor on the math subject. Okay. Now you can run the macro either using the shortcut or using the mouse selection method. Click on edit button to make any changes within the macro. Writing formula equation in MS Word. Writing equation in MS Word while typing the equation or mathematics equation can be easily done using equation option on symbols group under insert tab. To write a mathematical expression, click on this under insert tab and follow the following window appear. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर द इक्वेशन टूल ए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन फॉर राइटिंग इक्वेशन आर अवेलेबल. Select this and is used to choose the type of fraction. Select the appropriate type and click on the type equation. Here area to write the equation. This is e to the power x script is used to different type of superscript and subscript. This is for radical and provides the available option to type a radical. Similarly, there are options for integral equation, summation, pi equation, trigonometrical functions, etc. Okay. तो यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में देखा। अब क्या करते हैं, एक हैंड्स ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी यहाँ तक जो भी कुछ यहाँ पे देखा कि किस तरह रेफर करते हैं सेल को, किस तरह हम लोग सेल को रीनेम करते हैं, किस तरह से शीट को रीनेम करते हैं, ये सब एक बार करके देख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलिए ये स्टार्ट हो रहा है जब तक
देखिए सबसे पहला चीज है अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या करते हैं, टूल्स को ऑन कर लेते हैं, मैक्रोज। टूल्स ऑन क्या, मैक्रोज को ऑन करते हैं। मैक्रोज में क्या है आपका, मैक्रोज में क्या है, रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज डायलॉग, एक्सटर्नल फिल्टर सेटिंग। तो हमें क्या करना है अभी, एडिट मैक्रो करना है या फिर रिकॉर्ड मैक्रो करना है, यही करना है ना, ठीक है। ऑर्गेनाइज मैक्रो, लिब्रे ऑफिस बेसिक, बीन सेल या पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो भी है। हाँ, ओके। But here, as we have seen in our textbook, that is what was the process to record a macro? That is different, and that is saying, and that is server cut, and what was that? So the first option is that click on the developer tab. डेवलपर टैब तो यहाँ पे है नहीं आपका, डेवलपर टैब यहाँ पे है अवेलेबल क्या, डेवलपर टैब यहाँ पे डेवलपर टैब है क्या आपका, डेवलपर टैब तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, नहीं, विंडो हेल्प एंड व्हाट इज, डेवलपर टैब तो है नहीं, बट मैक्रो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेटा टूल्स, टूल्स में आपका डेवलपर तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं ना सर टूल्स में मैक्रो है तो, मैक्रो तो है, डेवलपर तो नहीं दिख रहा। एक्सटेंशन मैनेजर, नो कस्टमाइज ऑप्शंस, ठीक है। तो मैक्रो में जाते हैं, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, लिब्रे ऑफिस बेसिक, ठीक है। मैक्रो का नेम आप देंगे, नेम मैक्रो का नेम जैसे मान लो कि फर्स्ट मैक्रो, ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट मैक्रो। और हमें अभी क्या करना था, रीनेम करना था ना, इस सेशन का क्या नाम है, इस सेशन का जो अभी हम लोगों का था, रीनेमिंग वर्कशीट, वर्कशीट मैक्रो कर देते हैं, वर्कशीट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, हाँ चलो ऑपरेशन कर देते हैं, कर ही देते हैं, करें वर्कशीट ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। एग्जिस्टिंग मैक्रो एंड न्यू मैक्रो ले लिया हमने, इनवैलिड नेम वर्कशीट, ठीक है। न्यू मॉड्यूल 1 नेम आपका, चलो वर्कशीट डाल देते हैं, ओके, एंड ये न्यू इनवैलिड नेम, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्कशीट मैक्रो के नाम से आ गया आपका यहाँ पे, अच्छा डायलॉग, रन, व्यू, एडिट, फाइंड रिप्लेस, टूल्स, टूल्स में आपको चलो विंडो टूल्स, ऑर्गेनाइज, चलो इसमें देखते हैं शायद डेवलपर ऑप्शन दिया होगा आपका, ठीक है। ओके, फाइल ओपन, ठीक है, एडिट, व्यू, रन, कंपाइल, डायलॉग, ऑर्गेनाइज। चलिए इसका देखते हैं, इंटरफेस न्यू है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। हमें क्या करना था, सीट, नया सीट ऐड करना था, नया सीट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर से हम न्यू सीट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू सीट ऐड हो गया आपका, राइट ना। यस सर। अब इसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने सीट पे क्या क्या डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो तो सीट यहाँ पे आ गई। आप इसको टेस्ट 1 कर देते हैं हम, ठीक है, टेस्ट सीट 1, टेस्ट सीट 1 कर देते हैं, ठीक। अब इसको भी रीनेम कर देते हैं, दिस इज टेस्ट सीट 2 कर देते हैं, ओके।
इसको भी क्या कर देते हैं, टेस्ट सीट 3 रिनेम हो गया आपका। ओके, सेट को ऐड कर लिया, यहाँ रिनेम कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट सीट 1 में क्या किया, जैसे कुछ नाम लिख लिया यहाँ पे, जैसे पायल, ठीक है, इसके 45 मार्क 50 काजल है, ओके, इसके 48 कर दिए मान लो, फिर निशा है, इसका कर दिया 47 एंड फिर इसका मान लो यहाँ इसी का है, इसका मान लो 49 आ गया, फिर यहाँ पे चलिए है एंड वट ना, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सीट 1 पे ले लिया एंड गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग, कंट्रोल 3, यहाँ पे मैंने क्या क्या पेस्ट कर दिया, यहाँ पर क्या क्या थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आपके 100 में मार्क आ रहे हैं, तो 100 में मार्क आ रहे हैं तो यहाँ पे 89 आ गया, यहाँ पर 78 आ गया, 96 आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका 88 फिर 94 एंड सो ऑन। यहाँ पे अंडर सीट 3 में भी हमने ऐसा ही कुछ किया। ओके, सीट 3 में हमने किया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 78 88 98 88 89 एंड 87 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या किया, अब हमें क्या करना है, सेल में रेफरेंस देना है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, तो जैसे मान लो सभी टोटल अगर मुझे ऐड करना है, किसका टोटल कितना हुआ, ठीक है, तो इज इक्वल टू सम करने के बाद क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा हमें पता है, सीट 1 टेस्ट सीट 1, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट सीट 1, ठीक है, और फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और वहां पे मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, टेस्ट सीट 1 से किसको, B2, राइट, नहीं Yes, sir. B2 से लेकर के B2 को ऐड करना पड़ेगा एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इज इक्वल टू सम टेस्ट सीट का, टेस्ट सीट ही लिखा हुआ है, ओके, इज इक्वल टू B2 टेस्ट सीट, टेस्ट सीट 1 किया हमने, B2 B3 इज इक्वल टू सम किया हमने, और चलो ये तो आपका ठीक है, B2 to B3 एंड टेस्ट पेज का यहाँ पे हमें रेफरेंस देना था, रेफरेंस पेज को रेफर करना था, ये तो आपका डायरेक्टली ये वाला सॉरी एंटर, ये तो 166 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना था हमारा, सॉरी ये ना टेस्ट सम P2 to P3 कर लिया, ये क्या हो गया, सेल रेफरेंस जब मैंने दिया तो यहाँ पे रेफरेंस जो दे रहे हैं सेम सीट में दे रहे हैं, है ना, सेम सीट में सेम रेफरेंस दे रहे हैं, है ना, Yes, sir. सेम सीट में ही रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो इस सेल में हम लोग वर्क कर रहे हैं और रेफरेंस किसका दे रहे हैं, B2 का रेफरेंस दे रहे हैं, B3 का रेफरेंस दे रहे हैं, ओके। तो ये था हमारा, इस तरह से रेफरेंस देते हैं। तो चेंज ऑफ सेल रेफरेंस ये हो गया आपका, क्रिएटिंग अदर। अब यहाँ पे एवरेज निकालना था मुझे, P1 to P10 मार्केटिंग, ओके ओके ओके, जैसे सम देखते हैं, टेस्ट सीट 1 और ये ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है हमें, B2 से B6, B2 B6, यहाँ पर B2 B6 सिर्फ इसका ले रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि वो टोटल लेता आपका 820 से जो भी आपका था कि
एवरेज लिया आपने, मार्केटिंग से लिया है, ठीक है। ये refers to worksheet name, marketing refers to the range P1. Separate the worksheet reference from the cell range reference. Keep the cell in which you want to enter the formula. If the formula type is equal to sign and the formula you want to use. ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है? Creating reference to other sheet. Worksheet followed by an exclamation to the start of the cell reference. In the following example, worksheet function average calculate the average for P1 to P2 worksheet. ठीक है, this one तो हमारा ठीक ही तो जा रहा है, हमने ठीक ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मार्केटिंग सीट था इसके पास, पता नहीं मार्केटिंग, चलो बाद में देख लेते हैं। नहीं, बाद में देख लें इसको। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलो इसको Yes, sir. बाद में देख लेते हैं, ये क्यों नहीं हुआ। फिर रेफरेंसिंग अदर सीट को रेफर किया हम लोगों ने। अदर सीट को जब रेफर करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करना अदर सीट को, ठीक है। ठीक है, एंड अदर सीट को जैसे कैलकुलेट करना है, टोटल सेल करना है। टोटल सेल में हमने क्या किया, फिर वही आएगा सम जनवरी P2 should appear in the ओके, एक सेकंड इसको देखें। टेस्ट सीट P2, ठीक है, एंड इसको अगर ये करें टेस्ट सीट 2 B6, टेस्ट सीट 2 एंड यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालें, फिर इसको एंटर करें। ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, बट अगर सम कर रहे हैं, आई डोंट नो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, कुछ मिसिंग है शायद, हो सकता है कुछ मिसिंग हो जिसके कारण हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम ही है, सेम जनवरी है यहाँ क्या P2 एंड फेब P2, मार्च P2। और चलो एक काम करते हैं ना कि अपनी सीट को रीनेम करके देख लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं, एक छोटा सा रीनेम कर लेते हैं, रीनेम सीट कर देते हैं इसको ना 01, ओके। इसको रीनेम कर लेते हैं 02, हो सकता है ऐसा कुछ नेम वगैरह में कोई दिक्कत हो, जो भी 03, ओके। अब यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू 01 P2 02 02 एंड ठीक है, ठीक है। एरर आपको आया, एरर अगर यहाँ कर देते हैं, रेंज फिक्स कर देते हैं तो भी एरर आ रहा है। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग देयर, तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग, ओके ठीक है। ओके सर। जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे ना तो वहाँ पे ओके देख सर। लेंगे। तो पता नहीं, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट में करके देखते हैं हम आगे। और बाकी आप लोग हाइपरलिंक की जहाँ तक बात थी, तो हाइपरलिंक जैसे क्रिएट करना है, मान लो कि ठीक है पायल है, आप यहाँ पर हाइपरलिंक मुझे सेट करना है। हाइपरलिंक सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके हाइपरलिंक यहाँ से सेट करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपका ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ है, फिर आपका ये लिंक का ऑप्शन है, ठीक है, इंसर्ट हाइपरलिंक, या कंट्रोल के साथ के प्रेस करोगे तो हाइपरलिंक हो जाएगा। अब हाइपरलिंक का जैसे मान लो
कि इंटरनेट पे कोई पेज है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नाम ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना चैनल का नाम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक, मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। अब क्या चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जैसे क्लिक करे ना कोई, तो वो चैनल को रेफर करे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं काम करता हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, ये जो सीट है यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके पीछे हाइपर लिंक लगाया। हाइपर लिंक लगा के मैंने ये वाला क्लिक कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अप्लाई, देन ओके। ओह, मुझे क्या करना था, इसको सेलेक्ट करना था ना, यहाँ पे हाइपर लिंक देना था, नहीं, यूआरएल दे दिया यहाँ पे, फर्दर सेटिंग वेब डॉक्यूमेंट वेब, ठीक है, ओके। अरे ठीक है, मैंने ये क्लिक किया एंड देन यहाँ पर हाइपरलिंक को सेट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपका टेक्स्ट क्या है, आरएसएम टेक्नो क्लासेस है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसको मैंने क्या अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हुआ, ये ना लिंक बन गया, दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे मतलब जो भी लिंक था उस पर क्लिक कर, वहाँ पे क्या करेगा, उसको ब्राउज कर देगा, ओके। तो इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिया, हाइपरलिंक आ गया आपका ना, हाइपरलिंक। तो यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, हाइपरलिंक क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर, यहाँ पे आप हाइपरलिंक को एडिट भी कर सकते हैं, हाइपरलिंक जो भी आपका, उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। एंड ये ओपन क्यों नहीं कर रहा, तो आज क्या हो गया, कुछ काम नहीं करेगा क्या, तो वो यहाँ पे है तो अच्छा, ओके। अब ये है, इसको ना देखो, ये क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा कि हाइपरलिंक को इस तरह से एडिट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। यस सर। अब वर्किंग विद हाइपरलिंक, यहाँ पे हाइपरलिंक के साथ आप एडिट कर सकते हैं इसको। शेयरिंग वर्कशीट डेटा, जब वर्कशीट हम काम करते हैं, जब वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो हम जब फाइल को क्या करते हैं ना, फाइल सेव एज एक्सपोर्ट सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट वर्कशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट। इसको अगर जैसे ओपन डॉक्यूमेंट वर्कशीट में दे देंगे, क्या होगा कि जो फाइल मेरे पास है सेम फाइल आपके पास रहेगी, आप एट रैंडम काम कर सकते हैं। जैसे इसी का आप लोगों ने अटेंडेंस पे वर्क किया था, याद होगा आपको, नहीं? यस सर। तो वहाँ पे क्या करते थे, वर्कशीट को शेयर करते थे और सेम डेटा पे आप भी काम कर सकते थे, मैं भी काम कर सकता था, है ना, और एक टाइम पे भी काम कर सकते थे, राइट। तो चलिए अब इसके बारे में जो भी है आगे की क्लासेस में देख लेंगे हम लोग। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2 एंड वी विल go for the next unit in next session, okay, and thank you all, thank you today, thank you for today, okay। आज के सेशन में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहा है, जो भी हमारे है, तो वो फिर लैब सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे या फिर किसी और एक दिन सेशन करके कंप्लीट कर लेंगे, हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके सर। okay, bye beta, now you may leave the session, बाय सर। thank you beta, बाय सर। bye beta, बाय सर। हैव अ टेक नाइस केयर डे। सर। okay beta, bye। अब ये भी नहीं रुक रहा है, इसको क्या होगा।